Good morning, students. So, in our last lecture of organic chemistry, we discussed about functional groups and we discussed about a number of functional groups. These functional groups are written here. So, today we are going to start our lecture with homologous series. Today we start our lecture with homologous series. Homologous series in the series in which preceding members differ with a CH2 unit. Simply, family or group of structurally similar organic compound having same functional group shows a gradation or a slight change, shows a similar change in physical and similarity in chemical properties and any two adjacent members differ by a CH2 unit. Simply, homologous series is defined as the family or group of structurally similar organic compounds which have same functional group, shows a gradation in physical properties and similarity in chemical properties. सिंपली ये बात कर रहे हैं कि कुछ मेंबर्स हैं किसी फैमिली के. फॉर एग्जांपल वी राइट द एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहल फैमिली. CH3OH, CH3CH2OH and CH3CH2CH2OH. यहाँ पे हमने तीन मेंबर्स डिस्कस किए अल्कोहल फैमिली के. द अबव वन इज नॉन एज मीथेनॉल, सेकेंड वन इज इथेनॉल and third one is propanol. Simply, these three members have a slight gradation in their physical properties. Like अगर हम इनके मास की बात करें तो the difference in their masses is 14. Above 2 also 14. And the difference by CH2 unit, CH3OH, CH3CH2OH. One CH2 unit is extra here. So in these two compounds, the difference of CH2 unit is there, and the again two adjacent members differ by a CH2 unit. एक कुछ ऐसे members किसी particular family के जिनके adjacent members में CH2 का difference हो और उनके atomic mass में 14 का difference हो और उनकी physical properties similar रहे, उनको हम कहते हैं homologous series. Individual members कंप्लीट सीरीज को तो हम बुलाएंगे होमोलोगस सीरीज और जो इंडिविजुअल मेंबर्स रहेंगे उनको हम कहेंगे होमोलोग्स. एंड द phenomenon is known as homology. क्लियर है? होमोलोगस सीरीज़ क्या होते हैं? एक ऐसी सीरीज़ हमारी सेम फंक्शनल ग्रुप के मेंबर्स की जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो ग्रेजुएशन हो, चेंजेस हो, रेगुलर चेंज मतलब एक जैसा चेंज सभी मेंबर्स में दिखे. जैसे ऊपर वाले दोनों में 14 मास का डिफरेंस है और नीचे वाले दोनों में भी 14 का. अगर नेक्स्ट टू मेंबर लिखोगे तो वहाँ पे भी 14 का ही डिफरेंस मिलेगा आपको. केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है बिकॉज दे हैव कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप. इंडिविजुअल मेंबर्स को हम होमोलोग्स कहते हैं और फिनोमेना को हम होमोलोगी कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज.
इस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द मेंबर्स हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। सभी मेंबर्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप कैसा रहेगा हमारा? सेम रहेगा। द सीरीज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज को हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CnH2n+1OH, this one is the general formula of the homologous series of alcohols. General formula for homologous series of alcohol. Clear? Successive members of this series differ by a CH2 unit. सक्सेसिव मेंबर्स का मतलब एडजेसेंट मेंबर्स या प्रीसीडिंग मेंबर्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज shows a regular gradation, change and gradation। वो एक रेगुलर चेंज शो करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी के अंदर, मेल्टिंग पॉइंट के अंदर एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। एंड द लास्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। सो सिंपली हमने डिस्कस किया होमोलोगस सीरीज के बारे में। ऐसे मेंबर्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक रेगुलर ग्रेजुएशन आए, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहें, उनके अंदर दो एडजेसेंट मेंबर्स CH2 यूनिट से डिफर करें और एटॉमिक मास का डिफरेंस आए 14। These are some characteristics of homologous series. First one, they have to contain same functional group. Second one, the series is going to be represented by a general formula. Third one, successive members of this series differ by a CH2 unit. Physical properties show a regular change. Chemical properties are similar. Next हम डिस्कस करेंगे about the nomenclature of organic compounds. Next one is nomenclature. नॉमेनक्लेचर सिंपली मीन्स नाम लिखने का तरीका कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम किस तरीके से लिखेंगे। सो फर्स्ट थिंग हम यहाँ डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम। सिंपली एरिया वाइज और कंट्री वाइज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नेम्स। यूरिया is obtained from urine of mammals. एंशिएंट टाइम पे उसको यूरिन से ऑब्टेन किया जाता था, इसीलिए उसका नाम था यूरिया। फिर उसको लैब में भी सिंथेसाइज कर लिया गया था। मिथाइल एल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। मिथाइल एल्कोहल को क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट बोलते हैं। एंड दिस वन इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव distillation of wood. यूरिया obtained from urine of mammals, urine of mammals से मिलता था, इसीलिए इसका नाम था यूरिया। मिथाइल एल्कोहल को वुड स्प्रिट बोलते थे क्योंकि उसको ऑब्टेन किया जाता था बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। फॉर्मिक एसिड is obtained from red ants, and red ants are also known as formiceous ants. किसी पर्टिकुलर रीजन में उनका नाम था फॉर्मिशियस एंड्स, इसीलिए उनसे मिलने वाले एसिड का नाम दिया गया फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड is found in vinegar, and vinegar is known as acetum.
दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस एसिड इज गोइंग टू बी एसिटिक एसिड. ट्रिवियल नेम जो कॉमन रीजन वाइज नेम होते हैं उनके लिए. सिट्रिक एसिड is obtained from citrus fruits. Citric acid is obtained from citrus fruits. जो खट्टे फल हैं हमारे वहाँ से हमने citric acid को obtain किया और उनका नाम citric acid बोला गया. HCHO trivial name or common name is formaldehyde. CH3 C double bond O CH3. The common name of this compound is acetone. CHCl3. This one is chloroform. CHCl3 tetrahedral structure. CH3 4C is known as neopentane. This compound is known as neopentane. 5 carbon arranged like a flower shaped molecule. That one is known as neopentane. Benzene ring containing NH2 group. This one is known as aniline. क्या कहेंगे इस कंपाउंड को हम? एनिलीन बुलाएंगे. Benzene ring having OH group is known as phenol, and another name of phenol, another common name, is known as carbolic acid. Phenol का एक और नाम क्या है? Carbolic acid. And the last compound it's CHO. This one is known as benzaldehyde. This one is known as benzaldehyde. And CH3CN is known as acetonitrile. So simply हमने स्टार्ट किया डिस्कस करना नॉमेनक्लेचर के बारे में. तो नॉमेनक्लेचर में हमने जो सबसे पहली चीज़ डिस्कस की वो हमने डिस्कस किए ट्रिवियल और कॉमन नेम्स. ट्रिवियल और कॉमन नेम्स का सिंपल मतलब है कि अलग अलग कंट्री ने कंपाउंड्स को अपने अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिया. जैसे यूरिन ऑफ मैमल से प्रोड्यूस होने वाले कंपाउंड को नाम दिया गया यूरिया. वुड स्प्रिट से प्रोड्यूस होने वाले कंपाउंड को नाम दिया गया मिथाइल एल्कोहल या वुड स्प्रिट, बिकॉज they produce from destructive distillation of wood. Formic acid produced from red ants, formiceous ants भी हम इनको बोलते हैं. Acetic acid produced from vinegar. Vinegar is also known as acetum. Acetum इसका नाम है, इसकी वजह से इसको acetic acid के नाम से हम जानते हैं. Citric acid obtained from citrus fruits. HC double bond OH is known as formaldehyde. CH3 C double bond O CH3 is known as acetone. CHCl3 is known as chloroform, and carbon having 4 other methyl group surrounds is known as neopentane. Benzene ring with NH2 aniline. Benzene ring with OH phenol. Benzene ring with CHO is known as benzaldehyde, and CH3 with CN functional group is known as acetonitrile. Clear? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. दीज आर द ट्रिवियल नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेक्स्ट वन इज IUPAC नेम्स. IUPAC simply means International Union of Pure and अप्लाइड केमिस्ट्री. अब वर्ल्ड वाइड जब कॉमन नेम लिखे गए तो उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए जो हम डिस्कस करेंगे. IUPAC ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए 3 पार्ट्स में उसे डिवाइड किया. ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव 3 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज नॉन एज प्रीफिक्स.
second one is known as word root, and third one is known as suffix. जो मेन नेम से आगे लगते हैं उनको हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो नाम के बाद में लगते हैं उनको हम सफिक्स कहते हैं. प्रीफिक्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स. वर्ड रूट इज नॉट फर्दर सब डिवाइडेड. सफिक्स को फिर से डिवाइड किया गया. सफिक्स इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी सफिक्स and secondary suffix. Primary suffix and secondary suffix. तो first of all हम डिस्कस करते हैं about word root के बारे में. Word roots simply represent the number of carbon atoms in the principal chain. Word root represent number of carbon atoms in the प्रिंसिपल चेन. एक प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं हमारे, वो हमें किससे मिलता है? वर्ड रूट से. सिंपली C1 stands for meth, 2 carbon. C2 simply means there are 2 carbon, stands for eth, 3 carbon for prop, 4 carbon for but, 5 carbon for pent, 6 कार्बन फॉर हेक्स, 7 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करेंगे हैप्ट, 8 के लिए वर्ड यूज़ करेंगे ऑक्ट, 9 के लिए वर्ड यूज़ करेंगे नॉन, 10 के लिए वर्ड यूज़ करेंगे डेक. 11 अगर कार्बन हमारे पास आ जाते हैं तो हम ये वर्ड यूज़ करेंगे अनडेक. If 12 carbons are there, then we used dudeck. 13 के लिए trideck, 14 के लिए tetradeck, 15 के लिए pentadeck, like 13 के लिए क्या हो जाएगा? Trideck, and so on. C20 is known as ecosine. So by this way we can represent the number of carbon atoms in principal chain. C1 methane meth, C2 eth, C3 prop, C4 but, C5 pent, C6 के लिए hex, C7 के लिए hept, C8 के लिए oct, C9 के लिए non, C10 के लिए deck, C11 के लिए undeck, C12 के लिए dudeck, C13 के लिए trideck, C14 के लिए tetradeck, C15 के लिए pentadeck, and so on. C20 is known as ecosane. Secondly, we discuss about suffix. सेकेंड वन हम डिस्कस करेंगे सफिक्स. सफिक्स क्या होते हैं? जो नाम के पीछे लिखे जाते हैं. सफिक्स आर दोज विच आर रिटन आफ्टर द नेम. So suffix are of two types. प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास आ जाता है एन. अगर आपके कंपाउंड में सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है. फॉर एग्जाम्पल CH4 1 कार्बन के लिए हो गया मेथ और सारे सिंगल बॉन्ड है उसके लिए हो गया एन. द नेम इज गोइंग टू बी मीथेन. सेकेंड, इफ द कंपाउंड कंटेन्स डबल बॉन्ड, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो उसके नाम के पीछे हम क्या लिख देंगे? ENE. सिंपली 2 कार्बन डबल बॉन्डेड सेटिस्फाइड द वैलेंसी विथ 4 हाइड्रोजन्स. तो 2 कार्बन के लिए वर्ड हो गया एथ और डबल बॉन्ड के लिए वर्ड हो गया ENE, इथीन. तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथीन. थर्ड वन इज YNE रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड. YNE किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा. सिंपली व्हेन अ कार्बन फॉर्म्स 3 bond with another carbon and satisfied the 2 valency with hydrogen. So अब यहाँ पे 2 कार्बन के लिए वर्ड क्या हो गया? एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या हो गया? YNE.
So this one is known as ethyne. The common name of this compound is acetylene. देखिए एसिटाइलिन में हम ENE लिखते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि डबल बॉन्ड है, ये इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलिन. तो प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं. ANE स्टैंड्स फॉर सिंगल बॉन्ड, ENE स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड, YNE स्टैंड्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है फॉर फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप्स के लिए सिंपली फॉर एल्कोहल सिंबल एंड वर्ड. एल्कोहल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं OH और वर्ड यूज करेंगे OL. एल्डिहाइड CHO, word is Al. कीटोन C डबल बॉन्ड O और वर्ड यूज करेंगे ONE. सफिक्स मतलब जो नाम के लास्ट में लिखे जाएंगे ONE. कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ओइक एसिड. एस्टर COOR O8, इसके लिए हम वर्ड के लास्ट में यूज करेंगे. असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं, COCl, यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ड ऑयल क्लोराइड. ऑयल क्लोराइड. अमाइड CONH2, इसके लिए हम अमाइड वर्ड ही यूज करेंगे लास्ट में. साइनाइड, व्हेन द अटैचमेंट इज विद कार्बन नोन एज साइनाइड, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे नाइट्राइल या आप साइनाइड भी यूज कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज अमीन, रिप्रेजेंटेड NH2, और इसके लिए भी वर्ड के लास्ट में लिखा जाएगा अमीन. आइसोसाइनाइड NC, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसोनाइट्राइल, या सिंपली आप उसको आइसोसाइनाइड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो दीज आर द सेकेंडरी सफिक्स which are used for the functional groups. Like for alcohol we used OL, for aldehyde we used AL, for ketone we use ONE, for carboxylic acid we use oic acid, for ester we use O8, acyl chloride we use oil chloride, for amide we use amide, cyanide के लिए हम nitrile यूज़ करते हैं, amines के लिए simply amines, और isocyanide के लिए isonitrile. These are secondary suffix, primary and secondary. Next one is one more thing हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. देखिए जैसे हमने लिखा सिंपल एल्केन, दिस वन रिप्रेजेंट कार्बन काउंट, ANE रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. ANE तो सिंगल बॉन्ड के लिए होता है, यहाँ पे ENE होता तो डबल बॉन्ड हो जाता, YNE होता तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता. अगर आप उसको में फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, फॉर एग्जांपल हम ऐड कर रहे हैं अल्कोहल, इफ द नेम या लेटर ऑफ योर फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट्स फ्रॉम वोवेल, सो हम क्या करेंगे, ओमिट द ई. जो ई वर्ड है इसको ओमिट कर देंगे और नाम बन जाएगा एल्केनोल. अगर आपके फंक्शनल ग्रुप का नाम वोवेल से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है उसको हम ओमिट कर देंगे और नाम बन जाएगा एल्केनोल. क्लियर. सिंपल हेलोएल्केन्स में सिंपल हाइड्रोकार्बन के अंदर जब आप कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे और फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट लेटर अगर वोवेल है तो हम उसको ई को क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे. अगर कॉन्सोनेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज वहाँ पे रहेगा. सिंपली देखिए जैसे एल्कीन,
में आप नाइट्राइल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो नाम बन जाएगा एल्कीन नाइट्राइल। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं तो आप ई को ऑमिट नहीं करेंगे, ई एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। ई इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑमिट फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट प्रीफिक्सेस। वर्ड रूट हमने डिस्कस कर लिया, सफिक्स हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीफिक्स। प्रीफिक्स वो होते हैं जो लेटर से पहले लिखे जाते हैं, जो भी आपका मेन नाम है उसके आगे लिखे जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्रीफिक्स। एंड प्रीफिक्स हेल्प्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड एसाइक्लिक कंपाउंड्स। प्रीफिक्स हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? प्रीफिक्स हमें हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट करने में साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स को। सिंपली CH3, CH2, CH3, 3 carbon, all are single bond, so we name as propane. And if such structure is present, 3 carbon, these points represent carbon, 3 carbon single bonded, so we called cyclopropane. The cyclo word represent primary prefix. ये जो cyclo word है ये किसको represent करता है? ये primary prefix को represent करता है। Next one is secondary prefix. कुछ functional group हमारे ऐसे होते हैं जो suffix में नहीं लिखे जाते, वो हमेशा prefix में ही लिखे जाते हैं। जैसे halogens हमारे, hello is always written बिफोर द नेम। जब नेम स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम हेलोजेंस को लिखते हैं। X स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। NO नाइट्रोसो। अगर NO फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हमारी चेन के साथ तो नाइट्रोसो वर्ड जो है वो नाम से पहले आएगा। NO2 नाइट्रो। CH3 मिथाइल ग्रुप, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ये सब नाम से पहले लिखे जाते हैं। OCH3 methoxy is also written before the name. OC2H5 ethoxy, ये भी नाम से पहले लिखा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे जो नाम से पहले लिखे जाते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे जिनको हम नाम के बाद में लिखते हैं तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। नाउ यहीं पे अगर हम प्रीफिक्स के बाद हम टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। सिंपली इफ अ कार्बन फॉर्म्स ऑल इट्स बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, अगर कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए हैं या कार्बन ने अपना कोई एक बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन से बनाया है, कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड किए हो या उसका सिर्फ एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना हो, तो उनको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कार्बन। क्लियर? अगर कार्बन ने अपना सिर्फ एक और बॉन्ड कार्बन से बनाया है या अपने चारों बॉन्ड उसने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किए हैं तो उनको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। If carbon forms its 2 bonds with other carbon, अब देखो 4 में से 2 तो कार्बन के साथ बने, 2 हाइड्रोजन के साथ बने, तो दिस वन इज नॉन एज सेकेंडरी कार्बन। दिस वन इज नॉन एज सेकेंडरी कार्बन। एंड इफ द कार्बन फॉर्म्स all the 3 bonds with carbon and 1 with hydrogen, this one is known as tertiary carbon. और अगर उसने अपने चारों बॉन्ड किसी कार्बन के साथ बनाए हैं, दिस वन इज नॉन एज क्वाटर्नरी कार्बन। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्वाटर्नरी कार्बन। सो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट नेम हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हम लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स,
और लास्ट में हम मेंशन करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? सो यहाँ तक पढ़ के आइए नाम लिखने का तरीका। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट कुछ रूल्स एंड प्रैक्टिस करेंगे नाम किस तरीके से हम लिखेंगे विद द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सो आज हमने डिस्कस किया अबाउट होमोलोगस सीरीज के बारे में हमने पढ़ा। ट्रिवियल सिस्टम या कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने नाम देखे और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि IUPAC ने कुछ पर्टिकुलर सिस्टम दिया नाम लिखने का, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ तक पढ़ के आइए, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।